Recording in progress. Sir, we were here on this page, right? जी सर We were on this page, right? हम यहाँ पे इसी पर है ना सर Check करो. Let me know. I ठीक think है सर इस पेज पर है सर इस इसी पर है. हाँ We're starting the work, and we were doing वीडियो एक्टिविटी nuclear physics. Radioactivity was the first title in that, and we had started with the title of properties of radioactive rays. I'm putting the first concept for today, that gamma rays do not have any charge. So when you plot them through a magnetic field or through an electric field, gamma rays pass undeflected. You can see these are the gamma rays, and they are not deflected. So ये हमारा आज का मतलब पहला मैंने कभी डिफ्लेक्ट हो जाती है ना इलेक्ट्रिक और चार्ज पार्टिकल्स ये लोग डिफ्लेक्ट नहीं होते. तो लिखिएगा आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें, gamma rays are not deflected in any force field. Gamma rays are not deflected in any force field because gamma rays are not deflected in any force field because they have no charge. फिर अल्फा बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनका कंपैरिजन है, and I will share it on the group. So for comparison, alpha, beta, and gamma rays. Putting the concept now, the concept is of antimatter. Heading डालो antimatter. दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा एंटीमैटर. एंटीमैटर क्या होता है कि ये वो मैटर है जो शुरू में डिस्कवर नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ, और इसको कहते हैं कि दिस इज अ मैटर. हाँ, एंटाई मैटर कह लो, चलो एज अ प्रोनाउंसिएशन केस. Antimatter is composed of antiparticles. These are the particles which have the same mass but opposite charge to the corresponding particle. ये particles जो है, antimatter is complement to matter. It has the opposite characteristic. जैसे इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन. इस तरह न्यूट्रिनो का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और उसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो. सो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि हेडिंग है एंटी मैटर. सो लिखिएगा अ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ एंटी पार्टिकल्स
Zion, can you see something? Do you have a parallel torch with you? ठीक है वो टॉर्च पे दिखा देगा नहीं, मुझे नहीं. Can you write? Keeping. A matter that is composed of antiparticles तुमने क्या लिखा था अभी? But you have written. matter that is composed of antiparticles हाँ, तो नहीं है
देखो Zayan, you have to write the third concept for today, that antimatter is the complement to matter. ये हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. एंटाईमैटर इज द कॉम्प्लीमेंट टू मैटर. इट हैज द ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके थर्ड कॉन्सेप्ट ठीक है ना एंटाईमैटर. कि देखो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग एंटी मैटर. ये जो एंटी मैटर है या एंटायर मैटर है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें सारे पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअल पार्टिकल्स का ऑपोजिट होते हैं. अब ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं आती एंटी मैटर क्या होता है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट द थ्योरी सेज दैट फॉर एवरी पार्टिकल देयर इज अ ब्रदर ट्विन and that property wise is opposite in sense of charge, otherwise it's similar. So you have to write down the example. For example, electron and positron, neutrino and anti-neutrino. You have to copy down this example. ठीक है. जरा लिखो क्या एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स. अभी मैंने दोनों एग्जांपल्स कॉपी करा है ना सर. Good. So we have electron has an anti-particle ion called positron, and neutrino has an anti-particle called एंटाईमैटर. So now we are moving to our next. हमने O लेवल में पढ़ा था बीटा माइनस. बीटा माइनस क्या होता है? Beta minus is actually an electron and it is emitted from a nucleus. How come it is produced inside a nucleus? It is produced when a neutron disintegrates into a proton. This is the process by which a beta minus particle is produced. देखो प्रोसेस क्या है कि तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है, वो टूटेगा और उससे क्या बनेगा? एक प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन बनेगा इस्लाम. सर ये आज के 12 बजे वाली क्लास में. हाँ पर किसी में भी आता है. जो इलेक्ट्रॉन कोई और आया ना क्या? और 2-3 बच्चे तो नहीं होगा फुटबॉल खेल. उनको बुलाओ ना, अभी क्लास लेने रिफाइल हो. उनको बोलो सर कह रहे हैं इसी में क्लास ले लो. Disintegration of a neutron. Disintegration of a neutron. and न्यूट्रॉन के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा. जो न्यूट्रॉन टूटेगा उससे एक प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये वाला सिंबल देखो, ये एंटी न्यूट्रिनो है. इस प्रोसेस में मास नंबर डज नॉट चेंज while the proton number changes by 1. So अब आपको हेडिंग डालनी है. Yes, ये वाली हेडिंग डाल दो. ठीक है. हेडिंग डाल के ये कॉपी करो. तीन चार लाइनें छोड़ के, तीन चार लाइनें छोड़ देना और हेडिंग डाल दो बीटा माइनस.
वालेकुम। सर ये वाला चला दो। वाला चला गया। पीछे बैठे होगे ना? एक मिनट चला है। चार सेकंड सी आई के और क्या है कि डिक्शन वगैरह पे हमारा मैच कर बस स्टीम पे कर दो। नहीं बेटा सबके लिए थोड़ी सी चाहिए। सर सबको कर के लगे कि शक्ल दे। अरे आप बैठो आप शक्ल मत पहुंचे एक मिनट। ओके अच्छा पास में बस का हॉस्पिटल मैं सबसे आता टेबल पीछे वाले थे क्या नाम है? नहीं कर रहा है पीछा क्लास दीक्षा से चलिए बेटा आप बेटा रिलैक्स हो जाओगी जब तक बैठ सकती हो बैठो एक्स्ट्रा क्लास है लेकिन नींद आनी चाहिए। चलो हेडिंग डालो बीटा माइनस शुड यार रजिस्टर क्या बात कर रहे मेरा क्लास डिस्टर्ब ना हो। डिस्ट्रैक्ट कर देखो अब इसमें हेडिंग डाल दो बीटा माइनस छोड़ दो हमें दिल्ली का इशू उसको पेपर तो नहीं देना है। इसको उतारी काटती बेटा रिलैक्स हो जाओगी प्लीज आपको देना रख दिया बेटा लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना बेशक चले जाओ मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए कहा था कि बाहर हो अगर अभी क्लास ले लो तो घर चले जाओ टाइम वेस्ट करने का मकसद थोड़ी है लेकिन अगर नहीं है तो जा सकते हो मसला नहीं है। अच्छा हेडिंग है बीटा माइनस और ये टॉपिक हमारे कोर्स में 2016 में ऐड हुआ था डिफरेंशिएट होता पहले खाली बीटा पार्टिकल थे और फिर इन्होंने सिलेबस को अपडेट किया था एंड दे मेड इट बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। देखो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और उसमें हमने ये टॉपिक शुरू किया है बीटा माइनस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि बीटा माइनस जो होते हैं वो टेक्निकली क्या होते हैं दे आर टेक्निकली electrons and they are emitted from a nucleus and nucleus में वैसे तो electrons होते नहीं हैं तो फिर ये electrons emit कैसे होते हैं they are expelled when a neutron changes to a proton inside the nucleus। ये हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं और उनके ब्रेक होने से एक प्रोटॉन बनता है और साथ में क्या बनता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वो रिलीज होगा एस बीटा पार्टिकल। ये उसकी न्यूक्लियर इक्वेशन है जैसे हम लोग ओ लेवल में लिखते थे एक न्यूट्रॉन है उसके टूटने से एक प्रोटॉन बनेगा और साथ में क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इसके साथ एक सिंबल और है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जो हम ऊपर एक लाइन लगाते हैं। देखो हमने ओ लेवल में क्या पढ़ा था कि मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ मास नंबर क्या होता है तो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन ऐड हो गया इसलिए मास नंबर विल नॉट चेंज। एटॉमिक नंबर क्या होता है लिखा मैंने एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ये न्यूट्रॉन टूटता है तो उसके टूटने से एक नया प्रोटॉन ऐड हो जाता है इसलिए जो प्रोटॉन नंबर है वो किससे इंक्रीज कर जाता है 1 से। तो आपने जो लिखा था देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और उसमें हेडिंग डालेगी बीटा माइनस और उसमें लिखिएगा बीटा माइनस आर इलेक्ट्रॉन्स बीटा माइनस आर इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from an unstable nucleus. Beta minus are electrons which are emitted from an unstable nucleus. Unstable nucleus। अब ये मैंने समझाया कि न्यूट्रॉन टूटेगा लिखो के लाइन चेंज करिएगा और साइड हेडिंग दीजिएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन।
और उसमें ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। बस तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी, इसको पेपर नहीं देना है इसको सुनाओ। चलो अब देखो, ये जो सिंबल तुमने देखा, जिसको मैंने बताया था कि तुम्हें इसको अलग से याद करके जाना है। हाँ, थोड़ा जल्दी से। यस सर, चलो चलो चलो। वो जल्दी से कौन कर गया। देखो अब ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल देखिएगा, और ये सिंबल कहलाता है, वी कॉल इट एंटी न्यूट्रिनो। इस चैप्टर में जिस सिंबल के ऊपर ये लाइन बनाएगा, ऐसे ये सिंबल के ऊपर या नीचे, या तो ऊपर लाइन बनाएगा या नीचे लाइन बनाएगा, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे एंटी। एंटी मींस एंटी मैटर, एंटी पार्टिकल, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर तो बोलो ना। आप सेंड रहे ना, ये इसी को भेज। अब बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है। देखो जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे लेप्टॉन। और ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं। इस चैप्टर में तुम लोग कुछ नई टर्म्स याद करोगे, और जैसे तुम अभी देख रहे हो टर्म इंट्रोड्यूस अब करा रहे लेप्टॉन, तुम कॉन्सेप्ट ये बनाओगे कि एंटी न्यूट्रिनो, जो वर्ड एंटी है, इट्स यूज्ड फॉर एंटी मैटर, और जो वर्ड है वो एंटी मैटर के साथ है। अब देखो हम एक लफ्ज यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और वो क्या है? लेप्टॉन। तो नीचे लिखिएगा कि एंटी न्यूट्रिनो इज अ लेप्टॉन। एंटी न्यूट्रिनो इज अ लेप्टॉन। अच्छा, अब कौन से बनाओ कि ओ लेवल में हमने पढ़ा था कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन। उनको इस चैप्टर में हम नाम देंगे हेड्रॉन्स का, ये उनका नया नाम होगा। कुछ पार्टिकल्स थे जो ओ लेवल में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और शेल्स में होते हैं। इन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट करते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ये उनका नया नाम होगा। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, वो मैंने बताया था कि दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। लाइन चेंज करके लिखिएगा कि एंटी न्यूट्रिनो इज अ इलेक्ट्रॉन।
एंटी न्यूट्रिनो इज अ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद दो लाइनें छोड़िएगा, बोर्ड पे लिखिएगा। हमने ओ लेवल में सिर्फ बीटा पार्टिकल्स पढ़े थे, ए लेवल में एक बीटा प्लस है और एक क्या है उसके साथ बीटा माइनस। जो बीटा प्लस है उनको हम क्या नाम देते हैं? बीटा प्लस आर ऑल्सो कॉल्ड, पॉजिट्रॉन। दो लाइनें छोड़कर हमारी स्क्रीन कॉपी कर। सर क्लास कितने बजे खत्म होगी? ये वाला बैच है, ये है 12 से वही 50 मिनट की जो क्लास है। ठीक है, टाइटल क्या है? बीटा प्लस। और बीटा प्लस जो है हम इसको इस चैप्टर में क्या नाम देंगे? तो अब तुम एक कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर बीटा माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और अगर बीटा प्लस है तो उसको क्या बोलेंगे? दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है लेकिन चार्ज ऑपोजिट है, तो बीटा प्लस इज अ पॉजिट्रॉन। तो आप इसमें इसकी नेचर देखो, ऊपर जो मास है वो 0 है और चार्ज क्या है? +1। ये वाली इसकी साइड हेडिंग पे ये कॉपी होगा। ये तुमने हेडिंग डाली बीटा प्लस और उसके अंदर तुम ये कॉपी करोगे। क्वेश्चन नहीं उसमें लिखिएगा कि इट्स मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज आर द सेम। नीचे लिखिएगा इट्स मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज आर द सेम एज इलेक्ट्रॉन। its majority properties are the same as an electron. Its majority properties are the same as an electron. Its charge is opposite. Its majority properties are the same as an electron, its charge is opposite. अब आज का अगला कॉन्सेप्ट बनाओ कि पॉजिट्रॉन बनेगा कैसे? पॉजिट्रॉन उस वक्त बनता है जब एक न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल ब्रेक होता है? प्रोटॉन। जब एक पार्टिकल प्रोटॉन ब्रेक होता है, दिस इज अ सिंबल फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ब्रेक होने से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के साथ E+। E+ किसका सिंबल है? जो तुमने अभी पढ़ा, यानी पॉजिट्रॉन का। और ये सिंबल किसका है? दिस इज अ न्यू सिंबल फॉर यू। और इस सिंबल को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। दोबारा सुनो गौर से, हमारी नॉलेज में लेवल में दो तीन तरह के पार्टिकल्स थे। कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन। वो जो हमारा डेटा है हम उसको अपडेट कर रहे हैं और हम उसमें एक पार्टिकल अब ऐड कर रहे हैं, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इस चैप्टर में और क्या नाम लेगा? बीटा प्लस। ठीक है, इस चैप्टर में तुम्हें इस तरह की इक्वेशंस बहुत मिलेंगी। ये इक्वेशन इस चैप्टर में भर भर के आती है। ये कह क्या रहा है इक्वेशन के? जब एक प्रोटॉन टूटेगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनेगा, साथ पॉजिट्रॉन बनेगा। ये सिंबल एक नया सिंबल है हमारे लिए, और इस सिंबल को क्या करते हैं? इस सिंबल को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो तुमने कितने पार्टिकल्स और पढ़ लिया अपनी नॉलेज में? दो। एक एक तो सबके साथ ही है। एक तुमने पढ़ा पॉजिट्रॉन और दूसरा तुमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। दो पार्टिकल्स तुम अपनी डेटाबेस में ऐड करो, एक का नाम है पॉजिट्रॉन और दूसरे का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। रिपीट करो, दोनों पार्टिकल्स कौन से? एक का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन और दूसरे का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या है? E+। बहुत। पॉजिट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिसका चार्ज प्लस है। दूसरे पार्टिकल का नाम बताओ जो तुमने सीखा, वो क्या? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अच्छा, अब वो जो एंटी है वो पार्टिकल के साथ बोला जाता है
हमने ओ लेवल में पढ़ा था मैटर, उसके कॉम्पिटिटिव लफ्ज इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में एंटी मैटर। मैटर की दो हालत होती है, एक तो प्योर मैटर होता है, एक उसका एंटी मैटर होता है। जहां तक लिखा था उसके आगे लिखना कि पॉजिट्रॉन, देखो पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड when a proton disintegrates. A positron is produced when a proton is disintegrated. When a proton is disintegrated, उसके बाद देखो ये वाली जो इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन ये कॉपी करना। इस पूरे चैप्टर में, ये बहुत आसान चैप्टर है और हर साल पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन इस पर होता है और इसमें तुम्हें ये इक्वेशंस बहुत सारी है, 10-12 इक्वेशंस है जो तुम्हें अच्छे से याद करके जानी है। वो ये इक्वेशंस लिखने को कहता है। हमने आज पहले बीटा माइनस पढ़ा, फिर अब हम बीटा प्लस पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियर। चैप्टर का नाम बताओ। न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके अंदर वी आर स्टडीइंग सम न्यू पार्टिकल्स। देखो ये जो पार्टिकल तुमने पढ़ा इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। इक्वेशन तुम कॉपी कर चुके हो, उसके नीचे ये कॉपी कर लो। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो अगर उसका प्रोटॉन ब्रेक करेगा तो प्रोटॉन के ब्रेक होने से क्या बनेगा? बीटा प्लस। और अगर न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाए, उसका न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, तुम्हें बहुत अटेंशन देनी है, ये बहुत आसान है लेकिन शुरू में ये बहुत डिफरेंट लगता है क्योंकि इससे पहले आपके ओ लेवल में ही नहीं पढ़ा। मैं दोबारा समझाऊंगा। जब कोई न्यूक्लियस स्टेबल अनस्टेबल हो जाता है तो अगर उसका न्यूट्रॉन टूट जाए तो उससे बीटा माइनस बनेगा और अगर प्रोटॉन टूटे तो क्या बनेगा? जो पार्टिकल ये लिखा है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इस चैप्टर में जिस पार्टिकल पर आप ये लाइन डाल देंगे उसका मतलब होगा कि वो उसका एंटायर पार्टिकल है। मास नंबर डज नॉट चेंज, यानी इस पूरे प्रोसेस में मास नंबर नहीं बदलता। अब ये वाली स्क्रीन होगी। से काम कर लो। सर कोई है नहीं काम कराने ना। बेटा हम अगर ये सोचे ना कि कौन सा आएंगे और सब इंटरेस्टेड होंगे फिर तो पूरा साल में एक दिन भी काम नहीं हो सकता। तो अगर हम ये सोचेंगे तो हमें वॉलंटियर चाहिए, तो बेटा आप अगर थोड़ी हेल्प कर सकते हो प्लीज वो प्रोजेक्टर ऑन कर दो। तो ये भी आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है। छोड़ दे। इसकी लाइट आई देख। हाँ ये लाइट अब वापस आ जाए प्रोजेक्टर के, आप लोग यहाँ नाम लिख दो अपने अपने इधर इसको चला दो पेज नाम से तो सही है। हाँ प्रोजेक्टर नहीं होगा तो चार हमारी है संडे में मतलब सैटरडे कौन है? ये मीटिंग है। हाँ आज ब्लैक प्रोजेक्ट हो आज जी फ्राइडे को सैटरडे से कैंसिल करवा दिया था। एक घंटे की नहीं हो रही है तो
बेटा ये बेटा नाम लिख के आगे चलाते जाओ पेपर पे नाम लिख कर तो शौसन तेरा पढ़ाई में तो कुछ होनी ना, फुटबॉल में कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ले ली, यूनिवर्सिटी तो ऐसी ही है, सुनिए करीब बैठी हुई बना दिया छोड़ लो प्लीज सभी सही वैसे तस्वीर मैंने की गलत कर दिया आप ये बहुत टाइम है यार वो तो अभी 2 साल उसमें ज्यादा है ठीक है। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसके डीके के उसके डिसइंटीग्रेशन के 2 ऑप्शन है। अब उसमें लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा लिखो कि न्यूट्रिनो इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल। लिखो a neutrino is a subatomic particle that is very similar to an electron. Neutrino is a subatomic particle which is very similar to an electron, but it has no charge. But it has no charge. Its mass is very small. Its mass is very small. अब देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाओ जो तुम्हें जो आज हम पार्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। देखो एक पार्टिकल है E, इसके इन्होंने 3 तरह के पार्टिकल्स डिस्कवर किए। एक तो हम O लेवल से पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ बाद में वो बन गया E+ को क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन। और उसके बाद एक पार्टिकल मिला E0 और उस E0 को क्या कहते हैं न्यूट्रिनो। तो देखो तुम कॉन्सेप्ट क्या बनाओ कि जिस पार्टिकल पर ये चार्ज होगा माइनस वो क्या है इलेक्ट्रॉन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा अब देखो जिस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे पॉजिट्रॉन, और जिस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रिनो। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टिकल के इन्होंने कितने ग्रुप्स बना लिए 3। तो अब तुम ये वाली व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ये कॉपी कर लो। इसके बाद neutrinos are very abundant in the universe. Neutrinos are very abundant in the universe. न्यूट्रिनोस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब तुम अगला कॉन्सेप्ट बनाओ व्हिच इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। बोर्ड पे देखिएगा इनहाइलेशन या हम इसको इनहेलेशन भी पढ़ते हैं। The concept is there when a particle meets with its antiparticle, both the particles will convert into energy and apparently they disappear from the position. जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मीट करता है तो वो दोनों पार्टिकल गायब हो जाते हैं and they convert into a form of photon। बेटा बात नहीं करो प्लीज, चले जाओ प्लीज, जाओ चले जाओ ना, क्या से कह रहा हूँ नाराज। अब तो पहले से प्रेशर लेते हो, मैंने तो वैसे फेयरवेल के लिए कहा था आ गए बैठ गए अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने में क्यों प्रेशर लेते हो? जब कहीं पे रुकते चले जाओ। देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज इनहाइलेशन?
जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलेगा तो दे बोथ कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दे विल डिसअपीयर एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। हेडिंग डालो एनहाइलेशन, और ये वाली हेडिंग, और हेडिंग डाल के लिखो इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which a particle it is a process in which a particle meets with its antiparticle. It is a process in which a particle meets with its antiparticle and they convert into a pair of gamma ray photons, and they convert into a pair of gamma ray photons. दोबारा समझो, जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो they both will disappear and convert into energy, photon. अब आपने नीचे ये जो वर्ड इक्वेशन लिखी है ये कॉपी करनी, हम पेपर में जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन पेपर में जब लिखनी होगी, बोर्ड पे लिखेगा, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनको मीट करने से गैमा रे के फोटॉन्स बने, लाइन चेंज करके लिखिएगा। फॉर एग्जांपल और फॉर एग्जांपल लिखकर ये वाला बॉक्स कॉपी करना, ठीक है। ये वाला लिखा, ये लिखा है टू हाई काइनेटिक एनर्जी गैमा फोटॉन्स। हमने इनहेलेशन का कॉन्सेप्ट देखा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब होगा, जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मीट करेगा, कोलाइड करेगा। आप हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट, दो लाइनें छोड़ दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो तुम्हें इसमें टर्म्स देखनी है, तुम इनमें से मेरा ख्याल है कि सारी टर्म्स को पहले से जानते हो, तो मुझे ओरली बताते जाओ। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? Atomic number is the number of photons. व्हाट इज मास नंबर? The total number of photons and neutrons. और उसके बाद आइसोटोप्स, The same element in which case in total different. वेरी गुड। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेरी गुड। और The neutron number. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये क्या था, वो जो केमिस्ट्री वाला सिंबल होता है, जैसे तुम लिखते हो कार्बन को कैपिटल सी, ऊपर 12 नीचे 6, इसको क्या कहते हैं? Nuclide notation. ये कॉपी कर न्यूक्लियर नोटेशन। हम इस चैप्टर में जैसे ओ लेवल में था ना, तो इस चैप्टर में हम ओ लेवल से लेते हैं, ओ लेवल केमिस्ट्री से, और वो जो ये वाला सिंबल होता है ऐसे लिखने का तरीका, इसको कहते हैं न्यूक्लियर नोटेशन। इसको आराम से कॉपी करिएगा, यही आज का आखिरी काम है। हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ इंशाल्लाह, इसको आराम से कॉपी करें, फिर क्लास खत्म। सर वो मंथली टेस्ट में क्या आ रहा है? ये भी हर कोई नहीं कर सकता। Forces, density, and Sir, एक दिन में pressure, कर लो। work, energy, and power. फोर्सेस और और एनर्जी Energy, and power. रीटेस्ट में अच्छा है ये।